पीपल में से वो एक ख्वाब देख रहे हैं, और बिल्कुल। उस टारगेट को चेज करते करते एक लंबी दौड़ लगती है। तो उस हकीकत। दौड़ में जो नाकामी का खौफ है, उस नाकामी के खौफ को आपने कैसे मैनेज किया? ये इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आप कामयाब हो गए। ऐसा नहीं कि हम हमेशा कामयाब हुए। हम लोग हमेशा ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम्स हम लैब में देखते हैं कि चीज़ें वर्क नहीं करती है। हम कामयाब एक ही चीज़ से हुए हैं सर, ये टीम। ये जो कलेक्टिव एफर्ट से इतने सारे स्मार्ट इंटेलिजेंट लोगों के, इट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ दैट। इंडिया में सर पर ईयर वी हैव मोर देन 40,000 न्यू केसेस ऑफ ल्यूकीमिया लिम्फोमा and around 60,000, almost more than 1 lakh cases of blood cancer just in India। नए जो आ रहे हैं और जो पुराने हैं दे कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग। बट ये टेक्नोलॉजी क्योंकि ये पर्सनलाइज्ड है, तो अगर ये 10 साल पहले हुई आई होती तो अब तक हमने बहुत सारे लोगों की जान बचाई होती और उसको हमने इसका कॉस्ट भी बहुत कम किया होता। बट now because it is evolving and we are now making it better and cost effective, so our aim is कि हम तो एग्जॉस्ट नहीं हुए, हम तो एग्जॉस्ट नहीं होंगे। दिस इज अ impetus फॉर अस कि वी आर जस्ट स्टार्टिंग। अभी तो हम लोगों की शुरुआत हुई है सर, और विद द सपोर्ट ऑफ ऑल दीज ब्रिलियंट साइंटिस्ट्स वी सी कि आगे जाके कैंसर शुड बी लाइक ए पास्ट थिंग, कि ये ट्रीटमेंट इतना अफोर्डेबल हो जाए, इतना एक्सेसिबल हो जाए टू ए कॉमन पर्सन living in any corner of this country and the world. So that is what we are aiming, and artificial intelligence have tremendously contributed to this to ease the process, the development, clinical trial development। ये कश्मीर लाइफ स्टूडियो है, और मैं हूं मसूद हुसैन। Today we have a special program. It is being recorded online. We will be talking about a breakthrough in science where artificial intelligence has been used to detect and treat a particular cancer on which a lot of expenses would be required if we do it elsewhere outside India. For this technology, a group of scientists who work across the world, but who primarily are from a major institute of Jamia Millia Islamia, they have been behind it. And I will introduce Dr. Tanveer, who has headed this study that is being published by one of the major periodicals, Nature, in coming days. Dr. Tanveer Saab, welcome to the show, and please take over the show and explain our audience what the study is all about and how it is a major breakthrough in cancer treatment in India. Absolutely, sir. It is always a pleasure, sir, talking to you and having my team, my research group with you today. Kashmir Life, we have been following, and most of our researchers have been following. The best part with the magazine is it has a special focus on the research across the globe. And we have been seeing you have been inviting scientists across globe from US, Europe, and from India who can talk about the science they do. So we should be actually thankful to you, sir, for highlighting the things which we do in the lab. So, coming to this particular study, so this has been led by all the research scientists you are seeing here. There are three of us who are senior scientists. I'm Dr. Tanveer Ahmed. I'm assistant professor at Jamia Millia Islamia, and I have also been associated with a couple of industries. And along with me, Dr. Gaurav Kharia, he is also the senior corresponding author in the study. He could not join us today, he was traveling. Dr. Gaurav is a bone marrow transplant surgeon at Apollo Hospitals, New Delhi. And then Dr. Shiva Prakash Ramalingam, he is associate professor at IIT Kanpur. Dr. Shiva will be joining us shortly, and he will also give us his insights about this particular study. Now, the people you are looking at your screen, sir, these are the people behind this. We are just the senior scientists who, always try to imagine things beyond, possibility. But these are the people who actually make that happen, and You we are are the lucky. general and we are fighting the war. Absolutely. And we are lucky to have these young people associated with us. I think that all the credit goes to them. You will see they are there all the time in the lab, driven, motivated, and this how these kind of studies are possible from India. So they have been part of another study which you have highlighted, Cell Reports Medicine, which was also published in the similar lines. And this is the same group who has made the first molecule, which is a third generation CAR T cell. We'll come to that technology, sir. Third Exactly. generation CAR T cell they have And made. I would,
was taken forward for the clinical trial. So phase 1 has been done, phase 2 has been done, and the results are very good. All the patients, almost all of them, have are now cancer free, who were at the stage of third or fourth stage of their cancer, and it is these people who have made those molecules, and this is the extension to that. हम लोगों के रिसर्च का फोकस ही रहा है अभी तक, सिंस वी हैव बीन वर्किंग, कि जो भी डिस्कवरी हम लैब में करें उसको हम कितना जल्दी पेशेंट्स में ले, एंड पेशेंट्स में लेके जाने का ये है, देयर आर टू फैक्टर्स। वन इज कि हम कॉस्ट, जो ये थेरेपी है, अगर आप देखें यूएस में या यूरोप में, ये एक, दिस इज अ वन टाइम, एक बार ही ये पेशेंट को दी जाती है ट्रीटमेंट, इज लाइक लाइक ए मैजिक पिल। तो एक बार ही आपने ये पेशेंट को दिया, एंड पेशेंट विल बी, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स विल बी फॉर एवर डिजीज फ्री। बट उसका कॉस्ट जो यूएस में बाकी जगहों पे है, खाली थेरेपी का कॉस्ट जो प्रोडक्ट है, दैट इज अराउंड 4 to 5 करोड़। फिर हॉस्पिटल का कॉस्ट एंड बाकी जो पोस्ट ट्रीटमेंट केयर है, दैट इज अनदर कपल ऑफ करोड़। तो हम लोगों का यहाँ एम इस ग्रुप का यही था कि इस ट्रीटमेंट को हम कैसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाएं, और कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स तक हम लेके जा पाएं, सो मोस्ट ऑफ द मोर एंड मोर पेशेंट्स शुड गेट बेनिफिटेड, पर्टिकुलरली किड्स। ल्यूकीमिया जो है, इट्स ए कैंसर विच इज़ मोस्टली फाउंड इन किड्स। तो हम लोगों का पूरा एम यही था कि ये जो बच्चे हैं जिनको कैंसर होता है, उनको हम ये ट्रीटमेंट कितना अच्छे से और कितना जल्दी दे पाएँ, और कितना कॉस्ट इफेक्टिव हम इसको बना पाए, ताकि फैमिली शुड अफोर्ड दैट, ताकि लोगों को अपने घर ना बेचना पड़े, फ्लैट्स ना बेचना पड़े, टू गेट दैट ट्रीटमेंट टू दोज किड्स। तो हमारा फोकस रहा है कि 4 करोड़ से 20 से 25 लाख तक इसको लेके जाने का। और जो इन बच्चों ने ऑलरेडी ट्रायल किया है, दीज रिसर्चर्स हैव डन मेड द मॉलिक्यूल, जिसमें ट्रायल हुआ है, वो जब मार्केट में आएगा तो कॉस्ट अराउंड उतना ही रहेगा। और दूसरा, जो ये स्टडी पब्लिश हुआ नेचर में, इस ये मॉलिक्यूल भी अभी, दिस इज गोइंग टू बी इन द ट्रायल, और इस मॉलिक्यूल का भी हम यही सोच रहे हैं कि 20 लाख ही करें कॉस्ट, और उससे भी कम अगर पॉसिबल हो तो उससे भी कम हम इसको कोशिश करेंगे, ताकि इंश्योरेंस कवर कर पाए इस treatment को। So we are not going to make a chunk of money out of that, but it has to reach to the people, reach to the kids who will ultimately get benefited, and that is the aim for all of us as a researchers. जो main इसमें people have, those who are, they will explain more about the science, but I'll try to make that simple। जिन्होंने ये actually ये काम किया, जो नेचर ने मैगजीन ने कंसिडर किया है फॉर publication, and that will be available online by this weekend। तो सूफियान अंसारी, मोहम्मद सूफियान अंसारी, ही इज़ देयर, ही एंड वर्नित चौहान, ये दो मेन ऑथर हैं, एंड आशीष सिंह। सो दीज आर द मेन लीड्स इन दिस। इन तीनों का अलग अलग डोमेन है, क्या क्या उन्हें बनाया। सूफियान हमें ब्रीफली बताएंगे कि व्हाट ही हैज़ डन, देन वी कैन आस्क वर्नित अबाउट, वर्नित इज आवर कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट, so Varnit has a expertise in computational and AI। Sufyan molecular synthetic biologist है। आशी प्रोटेक्स बनाती है, शी मेक्स ऑल these molecules which degrade the proteins which are causing the disease, so she has been part of that। And then we can go to Divya uses AI to look at all the gene profiles of the patients, spatial omics पे particularly she works on, and she used AI tools to find out, screen out the potential genes, जो इस study में भी हुआ है। Nisha Chaudhary, Dr. Nisha is working on AI since last 8 years with us। तो डॉक्टर निशा ने जो काम सेट एआई मॉडल इसमें बनाया है, शी हैज़ बीन behind that, and she is the person who has actually developed that AI का model। Shantanu is there, he will also talk about the computational biology he has done, and then I'll keep on introducing other people। Rukaya is there, Sheetal is there, Priyal is there, Momina, she has also been part of it। She is from Kashmir। Insha is also there, she is also from Kashmir। Shakir is there, Nadeem, they have all contributed, and they will also talk about कि उन्होंने सब ने अपना अपना रोल इसमें निभाया है, सब ने कोई एक पर्टिकुलर पार्ट में कंट्रीब्यूट किया, एंड देन वी हैव ऑल टुगेदर कंबाइंड दिस। तो जो हम अभी इन 2 months ऑफ टाइम हम प्लान कर रहे हैं कि उसको भी ट्रायल में लेके जाएं। सो लेट्स स्टार्ट सर विद सूफियान ब्रीफली। So, good afternoon, everybody. I am Mohammad Sufyan Ansari, and I am currently fifth year PhD student under the supervision of Dr. Tanveer Ahmed.
So, as Dr. Tanvir already explained the story behind this paper, which is going to be published very soon in Nature.com. So, briefly giving the idea behind the paper. So, what we did is we performed meta-analysis of the already being done, the clinical tasks which were already being done. And we found out the major issue in these things that most of these clinical tasks are only monospecific. That is, they are targeting only a particular tumor antigen, which is CD19. So we found out that due to the tumor escape of CD19 and antigen heterogeneity, so these CD19 markers were not able to kill the tumor very effectively. So that's how we came up with the bispecific strategy, in which now we have dual targeting antigens, that is CD19 as well as CD20. So we performed various bioinformatic analysis and in silico approaches to find out the best targets of these CD19, CD20, and CD22. Why we are talking about these? Because in leukemia, these CD19, 20, and 22 markers are overly expressed, and these are the major tumor-associated antigens which are present on these cells. So, based on these, we designed multiple library of these chimeric antigen receptor molecules consisting of this bispecific with various combinations. So we tried around like 10,000 molecules in silico approaches, and then after finalizing with the AI guided approach in this one, we came up with around 1427 molecules of the bispecific strategy with various combination of the linkers and all these domain combinations. Then we came up with the strategy. We finalized few of these, and we found that CD20 in combination with CD19 works best and was effective in removing the tumor. So for that, we also generated an in-house tumor re-challenge model, which was very like unique in our sense, because till now we haven't done it. Nobody has done the tumor re-challenge model generated that mimic the tumor relapse condition of the patient. We generated this model, tumor re-challenge model, in the mice as well as in vitro analysis. कैंसर में अभी तक क्या होता है, पर्टिकुलरली जो ब्लड कैंसर है, तो ब्लड कैंसर में जो भी अभी तक ट्रीटमेंट थेरेपीज है, उसमें जैसे आप रेडिएशन थेरेपी देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं, या कोई और हम इम्यूनोथेरेपी देते हैं, तो चांसेस होते हैं रिलैप्स होने के, कि आपने ट्रीटमेंट दिया और कुछ टाइम के बाद वो कैंसर वापस आ जाता है। सो जो ये ट्रीटमेंट है कार टी, हम इसमें क्या करते हैं सर, ये हम मॉलिक्यूल दुनिया में कहीं उधर इधर से नहीं बनाते हैं। वी गेट दिस मॉलिक्यूल फ्रॉम द पेशेंट इटसेल्फ। हम Exactly. पेशेंट ब्लड ले लेते हैं, उस ब्लड को हम लैब में लेके जाते हैं। लैब में हम एक मैग्नेटिक प्रोसेस होता है आइसोलेशन का, उससे हम टी सेल्स जो लिम्फोसाइट्स होती है, जो इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स होती है, कैंसर फाइटिंग सेल्स, हम उस पूरे ब्लड में से टी सेल्स को निकालते हैं। उन टी सेल्स को हम फिर रिप्रोग्राम करते हैं, बायो इंजीनियर करते हैं। एक वायरस होता है लेंटी वायरस, दैट इज अ वेरी सेफ वायरस जो अभी तक हम यूज करते हैं, थर्ड जनरेशन लेंटी वायरस में एक मॉलिक्यूल होता है विच इज कॉल्ड एज कार, दैट इज काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर मॉलिक्यूल। वो हम टी सेल्स में डाल देते हैं, तो फिर ये बनता है कार टी सेल, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल। और इन टी सेल्स को हम एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड का मतलब है कि अगर हम बॉडी से हमने 1 मिलियन सेल्स लिए, तो हम इनको 50 मिलियन सेल्स लैब में बनाते हैं, ताकि वो इतना नंबर में आ जाए। फिर हम ये टी सेल्स में कुछ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं, बैक्टीरियल एंड अदर थिंग्स, वी एंश्योर कि ये सेफ है। फिर हम वापस यही टी सेल पेशेंट को देते हैं, एंड पेशेंट्स आर नाउ पेशेंट्स ओन टी सेल्स आर फाइटिंग अगेंस्ट देयर कैंसर, एंड दिस इज ए लिविंग ड्रग generated from patient's own blood cells. That is why this technology is called the fifth pillar of cancer therapy and one of the revolutionary. तो ये इसका सर बेसिक प्रिंसिपल है। Oh, पेशेंट you are actually taking cops and making them commandos.
Absolutely. That is the right word, sir, you have put it. So we take जो cells patient की, otherwise most of the people, normal people, हम we always get some cells mutated in our body. वो कैंसरस भी बन सकती है, मगर हमारे पास इफेक्टिव टी सेल्स होती है जो उन सेल्स को किल करती है, सो दैट दे डू नॉट बिकम कैंसरस. जिस पेशेंट में ये कैंसर हो जाता है, उनकी अपनी टी सेल्स आर नॉट केपेबल of fighting against those cancer cells. So we take those T cells out, we T molecule, और उस कार मॉलिक्यूल को हम पेशेंट्स में देते हैं. तो फर्स्ट टाइम ये स्टडी जो सर अप्रूव हुआ था 2017 में, यूएस ने इस थेरेपी को अप्रूव किया था. और इसका बेस्ट पार्ट है, एंड आई वाज एट नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ यूएसए व्हेन आई वाज डूइंग माय पोस्ट डॉक. आई वाज इन्वॉल्व एक्टिवली विद द ग्रुप who made these chimeric antigen receptor T cells there in US. So then I came back and I had privilege to be with this group. So iska best part of this treatment is this is a magic one time treatment. You do not need chemotherapy की ज़रूरत नहीं है, रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत नहीं है. जस्ट डायरेक्टली पेशेंट की अपनी सेल्स को ही प्रोग्राम करके वी गिव बैक. तो हाउ दिस थेरेपी वर्क्स, लास्ट पॉइंट, कि अगर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फेल हो जाए, सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फेल हो जाए, मतलब कि कीमोथेरेपी पेशेंट को दिया बट कैंसर वापस आ गया, रेडिएशन दिया कैंसर वापस आ गया, इम्यूनोथेरेपी दिया कैंसर वापस आ गया, फोर्थ लाइन भी अगर दिया, इम्यूनो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थेरेपीज एंड इट कैंसर केम बैक, तब जाके कार्टी आप देते हो. एंड देन दिस शोज द प्रॉमिस ऑफ having such a high rate of effectiveness. तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जब फेल होता है तब हम काटी देते हैं. एंड दिस इज हाउ दिस therapy is such a revolutionary therapy, and the reason why it is so expensive is because this is made from the patient's own cells, and because this is something which cures the patient. तो सर ये सुफियान was telling about this part. एंड देन एक और पार्ट जो सूफिया ने कहा सर, कि पहले जो लोगों ने किया था कि ये हाउ नेचर कंसिडर कम्युनिकेशन कंसिडर दिस पब्लिकेशन, कि कुछ कुछ पेशेंट्स में क्या देखा गया है सर विद विद दीज थेरेपीज इन लास्ट 12 years, कि कुछ में आप जब कार मॉलिक्यूल देते हो तो कुछ कैंसर सेल्स उनमें भी वापस आ जाती है, फ्रैक्शन ऑफ पेशेंट्स में भी फिर रिकरेंस होता है. ये ऐसे है जैसे एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस है. तो हम जो करंटली अवेलेबल कार्टी है वो है एक मॉलिक्यूल के अगेंस्ट देते हैं. जो सूफियान, वर्नित एंड ऑल दीज पीपल हैव डन, इन्होंने कार्टी बनाया जो दो मॉलिक्यूल को साइमल्टेनियसली टारगेट कर सकता है. एक मॉलिक्यूल अगर आपका म्यूटेट भी हो जाता है बॉडी में और वो प्रेजेंट नहीं है, दूसरा मॉलिक्यूल अवेलेबल है जिसके साथ कार्टी बाइंड करके उसको किल कर सकती है. तो वो इज व्हाट सुफियान वाज टेलिंग, बाइस्पेसिफिक. Can we go to another scientist so that he adds to the discourse that we already have so far? Absolutely. Varnit, can you just briefly tell us कि computationally हम कैसे molecules को डिजाइन करते हैं? आई एम वर्नत चौहान एंड इन दिस स्टडी मेरा जो मेजर पार्ट है वो है जो हमारे SCFE बाइंडर्स होते हैं कार के जो टारगेट करते हैं हमारे किसी भी प्रोटीन को, उनको डिजाइन करना. सो इसमें जो मेजरली यूज होता है वो एंटीबॉडी का एक फ्रेगमेंट यूज होता है दैट इज कॉल्ड SCFE. एंड वो एक माउस डिराइव्ड एंटीबॉडी होती है. सो केस क्या होता है कि जब आप माउस डिराइव एंटीबॉडी किसी एक ह्यूमन बॉडी में डालते हो तो उस एंटीबॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज जनरेट हो जाती हैं. उस चांस को कम करने के लिए एंड टू मेक आर कार मोर इफेक्टिव, हम लोगों ने कंप्यूटर्स का यूज करके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, सिमुलेशन पाइपलाइंस हैं, फिजिकल मॉडल्स हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, उनका यूज करके माउस डिराइव्ड एंटीबॉडी है उसको एक ह्यूमन फॉर्म बनाया है उसका जो बेटर है फॉर ह्यूमंस. सो आप अगर उस ह्यूमन फॉर्म्ड एंटीबॉडी को ह्यूमंस में देंगे तो वहां पे सिग्निफिकेंट डिक्रीज होता है चांसेस में एक इम्यून रेस्पॉन्स एलिसिटेट होने का. एंड इस में जो ये SCFE होता है इसको वी से एज ह्यूमनाइज्ड SCFE. अब इस SCFE का जो टारगेटिंग स्पेसिफिसिटी है कि ये अपने टारगेट पे जाके ही बाइंड करेगा एंड एफिनिटी से बाइंड करेगा, वो हम मेंटेन करते हैं माउस वाली एंटीबॉडीज का, बिकॉज इट इज सिग्निफिकेंटली हायर देन it is seen that it is often significantly higher than murine and humanized antibody.
So we also further optimize these humanized antibodies to have better binding affinity. Along with this, in this study, we have also targeted AKT3 is a protein जो T cell में बनता है and it is somewhat responsible for T cell exhaustion. So जो T cell के अंदर AKT3 बनता है उसको डिग्रेड करने के लिए वे डिजाइन प्रोटैक एंड जिसमें कि एक स्मॉल पेप्टाइड हम डिजाइन करते हैं डिनोवो स्ट्रैटेजी से द इट इज नॉट एन एग्जिस्टिंग पेप्टाइड जो किसी और प्रोटीन में एग्जिस्ट कर रहा है दिस इज अ न्यू पेप्टाइड एंड इट इज मेजरली डेवलप्ड through a diffusion based model and it is also a computational model जहां से हमें एक नए सीक्वेंस मिलते हैं and then we validate the interaction with molecular dynamic simulations and their affinity calculations. जी सर। Yes, there are two things that I would मुझे चाहिए, दो सवालों के जवाब मुझे चाहिए, क्योंकि जो लोग हमें देखते हैं, ये जो साइंस की जुबान है ये बहुत गाढ़ी होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है, आम लोगों के लिए की भाषा है नहीं ये। तो ये हमेशा मुझे पूरा साइंस तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगता है। तो खैर वो अलग कहानी है, मैं तो किसी तरह से मैनेज कर पाऊंगा। लेकिन दो सवालों के जवाब अगर दो साइंटिस्ट दे दें, एक ये तो क्लिनिकल ट्रायल्स का क्या हाल है, और नंबर दो, how soon is this therapy actually becoming a mainstream or introduced formally? Do we require to go to FDA or whatever institutions we have within our country so that it becomes, क्योंकि ये एक ऐसी मेलोडी है, एक ऐसी मुसीबत है जिसका इलाज जितना जल्दी हो उतना बेहतर हो। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सर। पहले क्वेश्चन का आंसर, जानवी इज विद अस। जानवी, ब्रीफली टेल अस कि ये करंट स्टेटस क्या है, व्हेन आर वी गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड फॉर द क्लिनिकल ट्रायल। तो देन आई विल टॉक अबाउट अदर अप्रूवल्स कि हम इस मॉलिक्यूल में अभी और क्या क्या चीज़ें कर रही है। Hello, sir. Hello, everybody. I am Janvi. So, sir, इसका GMP validation is completely done. हमने सब कुछ लैब में we have thoroughly done everything. बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सब्र के साथ करा है. And sir, we are very soon हम phase 1 clinical trials में proceed कर रहे हैं. इसका pre-clinical validation is completed. So, sir, we are very excited for that. Even एब्सोल्युटली। I am सो excited. एब्सोल्युटली सर, हमारा इसका ऑलरेडी हमने अप्रूवल्स ले लिए हैं सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो ये इंडियन सिटिस्को से ही अप्रूवल मिलता है टू डू phase 1 ट्रायल इन इंडिया। इसका phase 1 ट्रायल, वन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच दिस टीम हैज़ डेवलप्ड, ऑल ऑफ देम वी कैन नॉट टेक इट फॉरवर्ड, बट वन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो उसका ट्रायल CMC वेलोर से होगा। डॉक्टर विक्रम मैथ्यूज इज़ द PI फॉर दैट। और ये होपफुली एक विद इन 2 months वी विल बी एबल टू टेक इट टू द पेशेंट्स। सारे अप्रूवल्स आर इन प्लेस, इट इज़ जस्ट द फाइनल फॉर्मेलिटीज विच वी हैव टू डू। सो कमिंग बैक टू वर्णित ने जो कंपटीशन मॉडल बनाया एंड देन आशी हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दैट। ये एक यूनिक स्ट्रेटेजी है सर। जैसे पुराने मॉलिक्यूल जितने भी वर्ल्ड में अभी ट्रायल में हुए हैं या कमर्शियली भी अवेलेबल हैं, जब आप वो मॉलिक्यूल्स देते हो, मैनी ऑफ देम वो माइस से SCFE डिराइव हुआ है, माइस मॉडल से। तो जो कंप्यूटेशनली AI का यूज़ हुआ यहाँ पे, उसको यूज़ करने का मकसद ये था कि अगर माइस की आप एंटीबॉडी ह्यूमन में देते हो तो कुछ इम्यूनोजेनिसिटी वहाँ पे होती है, कुछ इम्यून रेस्पॉन्स आता है। तो उसको कैसे हम कम क्या करें और कैसे इस मॉलिक्यूल को सेफर से सेफर हम बनाएं, और दैट वाज द की पॉइंट। और वही रीज़न था, वी हैव ऑल्सो बीन लकी टू गेट द पेटेंट फॉर दिस टेक्नोलॉजी in India, and we have filed this patent in 14 other countries, including US. And one of the reasons is कि इसको हमने कितना सेफ बनाया है, besides having 2 targets in it. And then AKT Protec is a unique strategy जो आशी का पूरा PhD का काम है। तो वो एक प्रोटीन डिग्रेडेशन मॉलिक्यूल, आशी briefly if you can talk about protein. So this is also a novel strategy which these people are using. What are Protecs? Just brief. श्योर सर। हेलो सर, आई एम आशीष सिंह। सो कभी कभी क्या होता है कि हम जो कार्टी सेल्स बॉडी में वापस डालते हैं, सो ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ये उतने लंबे नहीं चल पाते कि ये ट्यूमर सेल्स को किल कर पाए। सो इनको स्ट्रेंथन करने के लिए हमने एक मॉलिक्यूल है AKT3 जो रिस्पॉन्सिबल होता है इन टी सेल्स, कार्टी सेल्स के एग्जॉशन के लिए। तो हमने क्या किया है, हमने एक प्रोटियोलिसिस टारगेटिंग काइमेरा बनाया विच इज द प्रोटैक मॉलिक्यूल, जो क्या करेगा, ये जो AKT3 है जो हमारे टी सेल्स को एग्जॉस्ट कर रहा है उसको स्टॉप करेगा, बाइंडिंग उसकी रोकेगा।
विच विल मीन कि हमारे जो ये कार्टी सेल्स बनाए हैं हमने बाय स्पेसिफिक, ये ज्यादा टाइम तक बॉडी में रह पाएंगे एंड ये ज्यादा ट्यूमर सेल्स को किल कर पाएंगे. सो दैट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. This technology has been, as you already said, कि बहुत expensive है in the West, but there have been some people working on it in the rest of the world, especially in some US universities. I know at least one who has been working on the same technology, but maybe he has a different recourse and he is tackling tumors and all that. Perhaps the same technology. But how different is it from what others are using? अभी तो मैडम साइंटिस्ट ने बताया कि how to prolong the life of Life these of this cell. सेल. Yes. तो कोई और चीज है जो इसको बाकियों से डिफरेंट बना देती है हमारी प्रोसेस बिल्कुल. को? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेलेवेंट क्वेश्चन. सर, ये टेक्नोलॉजी इंडिया में भी दो तीन इंस्टीट्यूट्स ने ऑलरेडी किया बनाया है. आईआईटी मुंबई ने इस टेक्नोलॉजी को 2023 में ट्रायल में लाया है. और फिर एक कंपनी है इम्यून नील करके, उन्होंने भी एक टेक्नोलॉजी सिमिलर टेक्नोलॉजी बनाया है. और थर्ड हमारा जो माइक्रो क्रिस्पर एक ऑर्गेनाइजेशन वेयर वी आर आल्सो, आई एम आल्सो एसोसिएटेड. सो वहाँ पे भी इसका एक टेक्नोलॉजी का एक पार्ट बना है. आशी, ब्रीफली कि हाउ इज दिस टेक्नोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम what people across the globe have been doing, and then Sheetal and Ruka, you add to that. सर, सो अभी तक क्या होता है, जो हमारे एग्जिस्टिंग कार्स हैं लोगों ने उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए या बॉडी में ज्यादा टाइम तक वो रहे, इसके लिए वो कार में चेंजेस करते हैं, कार को को स्टिमुलेटरी डोमेन्स चेंज करते हैं परसिस्टेंस बढ़ाने के लिए, इंटरल्यूकिन्स ऐड करते हैं. हमने क्या किया है, हमने प्रोटीन लेवल पे जाके जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है उनको एग्जॉस्शन के लिए, उसको हमने ब्लॉक करने की कोशिश की है, जो कभी किसी ने ट्राई नहीं किया है. सो इन दैट टर्म्स ये बहुत यूनिक स्ट्रैटेजी है. Ruka, you can talk about the dual approach and third generation part. सो कैंसर हमें सबको पता है कि आज तक काफी मुश्किल से हम उसके सोल्यूशन तक पहुंचे, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट होता है. आप उसको एक जगह से टारगेट करिए, वो दूसरा कुछ और वो अपना वो टारगेट छुपा लेगा, नया टारगेट ले आएगा या कुछ और करेगा. सो हमारे अप्रोच में रादर देन एक टारगेट को चूज किया, हमने दो टारगेट चूज किए कि अगर एक से एस्केप हो जाता है तो दूसरा पकड़ के वो उसे रिकग्नाइज कर. क्योंकि जो आपके नॉर्मल टी सेल्स हैं वो यही होता है कि उनमें वो रिकग्नाइजिंग प्रॉपर्टी ही खत्म हो जाती है. तो उसको और पोटेंट बनाने के लिए हमने एक नहीं दो टारगेट्स चूज किए हैं इन कैंसर सेल्स को स्पेसिफिकली देखने के लिए. और इसके साथ साथ हमने जो थर्ड जनरेशन यूज किया है, ये इसमें इन कार को और पोटेंट बनाए हैं और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए वो उसमें रह सके, ताकि जब तक सब क्लियर ना हो जाए, ऐसा ना हो कि आपके टी सेल्स जो है वो पहले ही खत्म हो जाए आपके कैंसर के खत्म होने से पहले. नहीं तो कैंसर जो ऑलरेडी एग्रेसिवली ग्रो कर रहा था वो अब और एग्रेसिवली ग्रो करेगा, और ये बार बार आपको देना पड़ेगा, जो कि पेशेंट के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा बार बार आना. एंड प्लस वो पेशेंट खुद इतना परेशान है, उसके हॉस्पिटल के अगर बार बार चक्कर को कम करने के लिए कॉस्ट तो है ही, प्लस आपका एफर्ट और इमोशनल स्ट्रेस जो होता है उसको कम करने के लिए ये आपकी एक मॉलिक्यूल इज सफिशिएंट कि वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहे, परसिस्ट करे और किल भी कर सके. क्योंकि शीतल, आपने you can किसी talk और about को कि इनमें मेमोरी हम जो है ना, when you increase the persistence, तो मेमोरी का क्या रोल रहता है टी सेल्स का? So basically, with every generation, like it's a very common saying, if every new generation is better than the last one. So as these are the third generation cars, so whatever the CAR T cells that are existing in the market, all those CAR T cells are second generation. So we have created a new generation, which is the third generation CAR. So the co-stimulatory domains that we have incorporated, they increase the memory phenotype of these CAR T cells. So अगर मैं इसको एक बहुत simple भाषा में बताऊं, so whenever आप जब भी कोई CAR T cell किसी ट्यूमर में देते हो, so it comes through a effector function. So CAR अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करता है and the phenotype changes to the effector T cells. But when we work on the memory phenotype of CAR T cells, अगर वो दोबारा से CAR उस एंटीजन के प्रेजेंस में आता है, so it immediately recognizes that antigen and kills it. So we not only work on this CAR aspect, but we also increase the phenotype of these T cells. एब्सोल्युटली. तो मेमोरी का जो व्हाट शीतल इज सेइंग सर, मेमोरी टी सेल्स का टी सेल्स बन जाती है कि अगर 5 साल के बाद 10 साल के बाद कभी फिर ये कैंसर वापस आ जाए, तो ये मेमोरी का टी सेल्स जो है, दीज विल हेल्प पेशेंट टू फाइट अगेंस्ट द कैंसर.
तो ताकि फिर वो कैंसर इंक्रीज ना हो, प्रोलिफरेट ना हो। और तभी इन सेल्स को कहा जाता है सर लिविंग ड्रग्स, एक बार एंड फॉर एवर इन फॉर द लाइफ। मॉडल जो निशा ने बनाया है उसमें वर्ल्ड का ये सबसे लार्जेस्ट कार स्क्रीनिंग मॉडल था, जिसमें निशा ने ऑलमोस्ट 10,000 मॉलिक्यूल स्क्रीन किए। निशा, कैन यू टेल अस अबाउट दैट कामसेट मॉडल? Hi, sir. Myself, Nisha Chaudhary. Actually, this AI model was trained on the sequences which have the signal values for the car sequences. These signals values were based on the response to the receptor CD19 stimulation. So we trained an AI model that could help us screen whether the particular car sequences could be taken further or not. So we evaluated around 12,000 sequences with the help of this AI model, and the car sequences which were like having the low prediction scores were our top performing constructs, and hence with the help of this AI model we took those top performing constructs for further evaluation. एब्सोल्युटली सर, ये दैट इज द बेस्ट पार्ट कि 10 से 12 हज़ार मॉलिक्यूल्स में आपने स्क्रीन करके फाइनली एक मॉलिक्यूल किया है। और ये आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले पॉसिबल नहीं होता। अब ये चीज़ें पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द एआई टूल्स एंड मॉडल्स विच निशा हैज़ डेवलप्ड। शांतनु वर्णित हैज़ लेड दिस प्रोजेक्ट, शांतनु, और जो हमारी एआई टीम है, काशिफ है, जूली इज़ देयर। All these smart people, they have developed these from scratch, these models. And that was the reason, sir, we were able to have successfully screened such a big library. I would like to ask it is not very scientific that way, but see, हम लोग we are chasing, obviously we have a target. People may say वो एक ख्वाब देख रहे हैं और बिल्कुल, उस टारगेट को चेज करते करते एक लंबी दौड़ लगती है। तो उस हकीकत। दौड़ में जो नाकामी का खौफ है, उस नाकामी के खौफ को आपने कैसे मैनेज किया, ये इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आप कामयाब हो गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई थिंक दिस वेरी वैलिड पॉइंट। ऐसा नहीं कि हम हमेशा कामयाब हुए। हम लोग हमेशा ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम्स हम लैब में देखते हैं कि चीज़ें वर्क नहीं करती है। 90% सर, ऑन रिकॉर्ड आई एम सेइंग कि 90% ऑफ द टाइम्स हमारी चीज़ें बिल्कुल भी वर्क नहीं करती। हम कामयाब एक ही चीज़ से हुए हैं सर, ये टीम, ये जो कलेक्टिव एफर्ट से इतने सारे स्मार्ट इंटेलिजेंट लोगों के, इट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ दैट। अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं था सर, ये हम ये ऐसी चीज़ को बना पाए और पर्टिकुलरली उस चीज़ को फिर पेशेंट्स तक लेके जाए। पहला मॉलिक्यूल भी उन्होंने बनाया पेशेंट्स में, सबसे बेस्ट वो अब भी वर्क कर रहा है। और ये सेकंड मॉलिक्यूल है जो पेशेंट्स में अभी जा रहा है। तो दिव्या कैन टेल अस लिटिल अबाउट कि हाउ वी आर एबल टू, दिव्या, नेविगेट दिस pathway where earlier it was very difficult to screen a molecule which used to take years, almost 10 years, 15 years for any drug molecule to reach to the clinic, and particularly in cell and gene therapy, which is more challenging than the small molecules. तो ये AI में and with the computational approach by informatics we are using, how have we been able to successful, we and others in the world, using these AI tools? Hello, sir. So, like, I'm a PhD scholar and I'm working on bioinformatics. So, अभी जो recent advanced technologies चल रही हैं, इतना ज़्यादा हेल्पफुल है कि हमारे जो बॉडी में सेल्स हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, और जो सेल्स में जीन्स हैं तो वो कैसे पाथवेज को गवर्न कर रहे हैं। लाइक कोई भी पर्टिकुलर डिसीज होता है, उसमें कौन से जीन्स हैं जो स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहे हैं, इतना तक भी हमें पता चल सकता है। इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया। सो इस पेपर में भी जैसा आशिर का इन लोगों ने बताया कि जो कार्टी सेल्स हैं वो विद टाइम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, या फिर कैंसर के ऊपर जो मार्कर्स हैं वो चेंज होने लगता है। कैंसर अपने आप को छुपा लेता है, तो जिसकी वजह से सेल्स, कार्टी सेल्स खत्म हो रहे हैं। तो वो कार्टी सेल्स लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट होते रहे, इसके लिए हमने उन सेल्स में आरएनए सीक्वेंसिंग किया। आरएनए सीक्वेंसिंग वो एक टेक्निक है जिससे हम पता कर सकते हैं कि उन सेल्स में कौन से जीन्स हैं जो सबसे ज्यादा ओवर एक्सप्रेस कर रहे हैं या सबसे कम एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो वहां से हमें AKT3 जीन हमें समझ में आया कि जो सेल्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं उनके पीछे ये जीन है जिसको इन्होंने टारगेट किया। तो आई थिंक ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है एंड सब लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया। हम लोग सब बहुत खुश हैं क्योंकि अगर एक पेशेंट का भी लाइफ बचता है इस थेरेपी से तो ये बहुत बड़ी बात है।
Absolutely. बड़ी बात है। डॉक्टर तनवीर, कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? आई वोंट Yes. आस्क यू कि ये जो मॉलिक्यूल तैयार हो गया, इट विल टेक इट्स ओन टाइम फ्रॉम इन मूविंग फ्रॉम योर लैब to the actually to the patient. It will take a bit of time because that is normal. That is the gestation periods we have in every technology, every fruit and every new breakthrough. लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, मैं ये आपको नहीं पूछूंगा कि इस मॉलिक्यूल की डिस्कवरी तक आप कितना एग्जॉस्ट हो गए, कितना खर्चा हुआ, लेकिन मैं ये जरूर पूछूंगा कि अगर 10 साल पहले हम यही मॉलिक्यूल पाते तो हमारा खर्चा कितना हुआ होता. So that I explain to my audience that how artificial intelligence is not only playing with the time durations of actually playing with things or diseases, but also managing the costs and all that. एब्सोल्युटली सच ए वंडरफुल क्वेश्चन सर। अगर 10 साल पहले ये हमें मिला होता और 10 साल पहले हमने या किसी और ने वर्ल्ड में ये किया होता, ये शीतल ने भी जो मेंशन किया, थर्ड जनरेशन है। 10 साल पहले लोग फर्स्ट और सेकंड जनरेशन ही बना रहे थे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी विद टाइम इवॉल्व हुआ है। तो फर्स्ट जनरेशन आया, फिर सेकंड जनरेशन आया, अब ये थर्ड जनरेशन है। फर्स्ट सेकंड जनरेशन में मोनोस्पेसिफिक, जब एक टारगेट को ही हम देखते थे। अब ये थर्ड जनरेशन बाई स्पेसिफिक है। तो 10 साल पहले अगर हुआ होता तो सर वी कुड हैव सेव्ड लॉट ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल, कि तब हम टेक्नोलॉजी को एक्सपेंड करते। राइट नाउ इंडिया में भी जो अवेलेबल है, वी आर नॉट एबल टू एक्सपेंड। इंडिया में सर पर ईयर वी हैव मोर देन 40,000 न्यू केसेस ऑफ ल्यूकेमिया लिम्फोमा एंड अराउंड 60,000, ऑलमोस्ट मोर देन 1 लाख केसेस ऑफ ब्लड कैंसर जस्ट इन इंडिया, नए जो आ रहे हैं। और जो पुराने हैं दे कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग। बट ये टेक्नोलॉजी क्योंकि ये पर्सनलाइज्ड है, तो अगर ये 10 साल पहले हुई आई होती तो अब तक हमने बहुत सारे लोगों की जान बचाई होती, और उसको हमने इसका कॉस्ट भी बहुत कम किया होता। बट नाउ बिकॉज इट इज़ इवॉल्विंग एंड वी आर नाउ मेकिंग इट बेटर एंड कॉस्ट इफेक्टिव, सो आवर एम इज़ कि हम तो एग्जॉस्ट नहीं हुए, हम तो एग्जॉस्ट नहीं होंगे। दिस इज अ इम्पीटस फॉर अस कि वी आर जस्ट स्टार्टिंग। अभी तो हम लोगों की शुरुआत हुई है सर। और विद द सपोर्ट ऑफ ऑल दीज ब्रिलियंट साइंटिस्ट्स, वी सी कि आगे जाके कैंसर शुड बी लाइक ए पास्ट थिंग, कि ये ट्रीटमेंट इतना अफोर्डेबल हो जाए, इतना एक्सेसिबल हो जाए टू ए कॉमन पर्सन लिविंग इन एनी कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री एंड द वर्ल्ड। तो दैट इज व्हाट वी आर एमिंग, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैव ट्रेमेंडसली contributed to this to ease the process, the development, clinical trial development। इसका ट्रायल भी सर हमने ऑलरेडी 1 साल से हमने इसका प्रोसेस शुरू किया है ट्रायल का। तो वी आर होपफुल कि 2 महीने के अंदर अंदर इसका ट्रायल हम लोग पेशेंट्स में लेके जाएं, क्योंकि वो एक्सरसाइज पहले से ही शुरू हुई है सर। जब ये बच्चे कॉन्फिडेंट थे कि ये मॉलिक्यूल काम करेगा, सो दैट एक्सरसाइज हैज़ बीन डन। 1 साल पहले हमने रेगुलेटरी से अप्रूवल शुरू किया था लाना। सो 2 महीने के अंदर दिस मॉलिक्यूल विल बी इन द ट्रायल। और आपके पास हम और आएंगे एक बारी जब हम सक्सेसफुली बच्चों को एंड पीपल हु हैव कैंसर वी हैव बीन एबल टू ट्रीट देम। हमारे बहुत सारे जो ब्रिलियंट साइंटिस्ट हमारे इस वक्त जुड़े हैं हमारे पास, कुछ ने तो बात नहीं की, तो आप उनसे कुछ ना कुछ तो यस, बुलवाइएगा ताकि यस, वो इसमें एब्सोल्युटली। हिस्सा बन जाए. सो नाइस, मैं वही चाहता था कि बाकी से भी। सो शाकिर इज देयर। सो शाकिर का भी फ्यूचरिस्टिक है, इज वर्किंग ऑन एन अमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें आपने और हमने काफ़ी पहले भी बात की, क्रिस्पर, क्रिस्पर कैस बेस्ड जीनोम एडिटिंग। शाकिर इज लीडिंग दैट एंड प्रियल इज ऑल्सो लीडिंग दैट। प्रियल इज यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी फॉर sickle cell disease, or Shakir is making allogenic CAR T cells, which is a next step to this, although that will be much cheaper in terms of the cost. So Shakir will briefly tell us कि वो universal CAR T therapy बनेगा with the technology Shakir is working. Shakir, you can talk briefly about the CRISPR technology, then Priyal can mention about the sickle cell application, and then we'll go to others. और कोई ऐसी चीज नहीं बताना है जो आप किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहते. Yeah, I think, sir, these are smart people. They always come up with unique ideas, and I think sharing for this part will be good if people do it. So we'll be happy because हमारा aim है कि patients को save करना. तो शाकिर, yes, over to you. सर अभी तक क्या हो रहा है कि ऑटोलोगस कार टी थेरेपी चल रही है। हम लोग पेशेंट से टी सेल उठाते हैं एंड वी इंजीनियर देम
एंड देन वही पेशेंट में हम लोग वापस भेजते हैं। बट ये इसमें कई सारे चैलेंजेस हैं जिसमें हम करने पड़ सकते हैं। उसको मिटिगेट करने के लिए हम लोग एलोजेनिक CAR-T लेकर आते हैं। अब उसमें होता क्या है कि हम लोग हेल्दी डोनर्स से टी सेल्स ले सकते हैं, उसको इंजीनियर कर सकते हैं, एंड फिर उसके बाद जितने कैंसर पेशेंट्स को हम डाल सकते हैं वो नंबर बहुत बढ़ जाता है, एंड देन कॉस्ट जो है वो बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा इससे, क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोग बैचेस बना सकते हैं और हम जो चाहे इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं इन सेल्स में। सो एक बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ अभी। और क्रिस्पर कैस को यूज करके हम लोग यूजली इंजीनियरिंग करते हैं टी सेल्स में, और बहुत सारे एडिट्स हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं टू मेक इट एलोजेनिक। फिर उसके बाद उनको डिलीवर करते हैं हम पेशेंट्स। तो लॉजिस्टिकली इवन टेक्निकली बहुत साउंड टेक्नोलॉजी है। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। सो सर, क्या होता है कि अगर मैं अपनी मेरी टी सेल्स अगर हेल्दी है, तो जो अभी तक ये अप्रोच चल रहा है वो ऑटोलॉगस है। आपने पेशेंट की ही टी सेल्स निकाली, उनको ही इंजीनियर किया, उनको ही वापस दिया, तो उस प्रोसेस में इट टेक्स वेल अराउंड 2 to 3 weeks टाइम लग जाता है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए, और कॉस्ट भी उसका अलग से अपना ऐड होता है, वो लॉजिस्टिक्स एंड अदर थिंग्स। तो जो शाकिर की टेक्नोलॉजी है वो एलोजेनिक यूनिवर्सल कार टी सेल्स। मैं, इफ आई एम ए हेल्दी पर्सन, मैं अपनी सेल्स डोनेट करूंगा, टी सेल्स। उन टी सेल्स को आप किसी भी कैंसर पेशेंट्स में दे सकते हो। पहले ये पॉसिबल नहीं था, अब ये पॉसिबल है, क्योंकि किसी भी और की सेल्स अगर दोगे तो वो रिएक्शन हो जाता है, इम्यून रिजेक्शन हो जाता है उन टी सेल्स को। जो शाकिर का क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी है, वो उनमें वो स्पेसिफिक एडिट्स करता है उन हेल्दी टी सेल्स में, ताकि वो किसी भी पेशेंट्स में अगर हम दे, वो MHC मॉलिक्यूल जो रिकॉग्नाइज करती है इसको फॉरेन, वो रिकॉग्नाइज ना करें और ये अपना काम करते रहें। तो वो कार्टी सेल आप इंडिया में बना के दुनिया के किसी भी कोने में लेके जा सकते हो विद द टेक्नोलॉजी शाकिर हैज डेवलप यूजिंग क्रिस्पर कैस। प्रियल इज ऑल्सो वर्किंग ऑन अनदर डिजीज जहाँ पे हम सेम चीज करें फॉर सिकल सेल, जो इंडिया में सबसे ज्यादा है, बीटा थैलेसीमिया। प्रियल। यस सर, हेलो सर, माय नेम इज प्रियल और मेरा काम जो है वो स्टेम सेल्स पे है। स्टेम सेल्स बेसिकली वी कैन टारगेट स्टेम सेल्स फॉर वैरायटी ऑफ हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ब्लड डिसऑर्डर्स के लिए। टी बी सेल्स सब ब्लड स्टेम सेल्स से ही अराइज होते हैं। तो मेरा काम जो है वो पर्टिकुलरली एज ऑफ नाउ सिकल सेल डिजीज पे, जिसपे हीमोग्लोबिन की एनीमिया हो जाता है और रेड ब्लड सेल्स की शेप चेंज हो जाती है। बेसिकली जो नॉर्मल हेल्दी रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बाइकॉन्केव होते हैं, और जो पेशेंट के रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो सिकल शेप हो जाते हैं। तो उसके लिए आई apply gene editing and all of these technologies. Some of them have already been done, but I am trying to improvise those strategies to making more precise editing. So और हम उसको कितना सेफ बना सकते हैं और उसमें क्या इनोवेटिव इन वीवो पर्टिकुलरली कैसे ला सकते हैं, that is what I do. And side by side I am working for the CAR-T, and as I have learned from them, so I'm also collaborating in the development of the CAR-T platform. सो नाइसली पुट। सर, ये जो प्रियल टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, ये US में इस एक पेशेंट के लिए ये ट्रीटमेंट है 20 करोड़ का। सो दैट इज a 20 करोड़ प्रोडक्ट, और वो इंडिया में हम लोग एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, आम इंसान। नहीं कर सो पाएंगे। प्रियल का और हम लोगों का, डॉक्टर शिवा IIT कानपुर में, ही इज लीडिंग दिस प्रोजेक्ट इन द कंट्री and one of the lead scientists in the country, and Priyal has been trained by Dr. Shiva. So वो टेक्नोलॉजी जो डॉक्टर शिवा बना रहे हैं, प्रियल इज वर्किंग एंड डेवलपिंग दैट। तो एम यही है कि अब इंडिया में बना के विद ऑल द पॉसिबल चेंजेस विच वी कैन मेक एंड मेक इट पोटेंट बेटर। तो कॉस्ट इसका वही 25 से 30 लाख का हम ले आए कंट्री में दें, एंड फ्रॉम द कंट्री वी कैन टेक इट टू द वर्ल्ड। और वो एम है यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को लेके, यूजिंग क्रिस्पर कैस फॉर सिकल एंड थैल। I've been following Dr. Tanvir and his group of scientists for last many years. So I'm aware of the things that you are doing before COVID, post-COVID. So, but I think for all those breakthroughs or interventions you made in different periods of time would require a very special kind of an approach and conversations in coming days. तो मुझे लगता है कि आज जो ये ब्राइट साइंटिस्ट्स ने एक बहुत ही मेजर ब्रेक थ्रू किया मुल्क के लिए, और इसमें जो चेंजेस आ जाएंगे हमारी हेल्थ केयर सेटअप्स में इन कमिंग डेज, दैट इज़ अ वेरी मेजर इंटरवेंशन जो रिसेंट डेज में हुआ है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम इसके फॉलोअप में कुछ ना कुछ और कर ही लेंगे, बट इन ऑर्डर नॉट टू न्यूट्रलाइज
the impact of this conversation that is focused on something very, very serious. I would suggest कि हम जो बाकी आपके काम रहे हैं पिछले दिनों में, उन काम के हवाले से हम कभी और मौका निकाल के बात कर लेंगे। आज हमारा Absolutely. फोकस इसी पर रहेगा, तो हम इसको न्यूट्रलाइज नहीं करना चाहिए। ये मेरी सजेशन है। आई Absolutely. कैन टॉक विथ वी यू फॉर आवर्स टुगेदर, नो इश्यूज, लेकिन इससे सब्जेक्ट थोड़ा न्यूट्रलाइज ना हो जाए। Exactly. No, तो इज exactly, देयर sir. समथिंग, Absolutely. इज I देयर agree. समथिंग दैट वी कैन ऐड टू दिस? Yes, and in coming days, I think all of the people who are there, शीतल ने भी एक अमेजिंग काम किया है। उसका भी जो मॉलिक्यूल है दैट इज ऑलरेडी अप्रूव्ड फॉर द ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल के लिए, एंड आई थिंक विद इन 10-15 days दैट मॉलिक्यूल इज गोइंग टू हिट द क्लिनिकल ट्रायल, मे बी मंथ एट द मैक्स। तो उसके बारे में मैं और शीतल अलग से आपसे बात करेंगे। रुकया का मॉलिक्यूल है दैट्स आल्सो गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड ऑफ सेल एंड जीन थेरेपी इन वाइवो कार्टी पे। तो हम आपके पास फिर आएंगे एक बारी उसका डिस्कस करने नहीं के नहीं, मैं लिए। ही आ जाऊंगा। नो नो नो, आई रेस्पेक्ट यू अ लॉट बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग दैट आई एम नॉट एबल टू, और आई एम नॉट प्रोग्राम्ड टू डू दैट। इट इज़ अ प्लेजर सर। आई थिंक वी आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स द कंट्री। अपना हम लोगों का फोकस ये है कि जो हमने सीखा है फ्रॉम वर्ल्ड एंड अदर प्लेसेस, हाउ दीज स्मार्ट साइंटिस्ट कैन शो इट टू द वर्ल्ड। इंडिया में तो हम वी ऑलवेज वर्क इन कोलेब्रेशन विद ऑल द पीपल हु हैव डन गुड वर्क एंड हु हैव बीन इवन बेटर देन अस डूइंग द ग्रेट साइंस। तो वी थिंक वी हैव टू बी बेटर इन द वर्ल्ड, ताकि हम इस जो 10 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़ की थेरेपी है विच कॉमन पर्सन कैन नॉट अफोर्ड एटलीस्ट फॉर अनदर 20-30 years, तो उसको हम कितना कॉस्ट इफेक्टिव बनाए। एंड ये टीम ने ऑलरेडी दिखाया है सर कि हम बना सकते हैं, एंड वी कैन, एंड दैट इज द पोटेंशियल वी हैव। सो आई कैन briefly maybe show you the molecule that they have made, and then we can finish our. नहीं नहीं, एक एक बात है, अगर किसी ने अभी तक बात नहीं की तो मतलब हम सब, मैं भी दावत पे आया हूँ, आप भी दावत पे आए हैं, तो सबको तो बात करनी ही चाहिए। तो अगर कोई रह गया तो क्या बात करनी जरूरी है, क्यों इस Absolutely. प्रोग्राम में? Volunteer, Insha is a Nadeem. Nadeem is the person who is working with Divya, and he is expert in bioinformatics and computational RNA sequencing data analysis. Nadeem, briefly, hi and hello. I think sir, इनका भी काम we will separately meet and discuss the work they have ओके। done. शांतनु का एक अमेजिंग काम है जो कल ही पेटेंट हुआ है। इसने एक एंटीबॉडी प्लेटफॉर्म बनाया है। सो इट्स ए यूनिक एआई बेस्ड पाइपलाइन, जिससे आप एआई से ही एंटीबॉडी डिज़ाइन करते हो। तो कल ही वो पेटेंट हुआ है। एंड देन इंशा इज ऑल्सो वर्किंग। if you guys want to volunteer and speak about what you have done, and Kashif is also working in this domain, guys, you are welcome, but I think we need a separate whole hour to discuss about the. वी विल डू। Divya, you want to say anything? यही है कि मतलब बहुत बड़ी बात है एंड कितने पेशेंट्स के हम लोग जान बचा सकते हैं ऐसे। कैंसर डिसीज पहले जब कोई सुनता था सबको लगता था कि क्या हो गया, लाइक ट्रीट भी नहीं कर सकते। तो इंसान का लाइक था कि लाइक ही और शी विल डाई। बट अब ऐसा सिनेरियो है जिस तरह से रिसर्च चल रही है लैब्स में कि कैंसर का भी क्योर हमने ढूंढ लिया एंड हम लोग कंटिन्यूसली उसको और इफेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो हम लोग एज रिसर्चर्स, एज साइंटिस्ट, लाइक वी फील सो प्राउड अपने ऊपर, अपने आसपास के लोगों के ऊपर कि हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं। एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब अगर किसी को कैंसर हो भी रहा है वो बहुत इजीली अफोर्ड कर सकता है ये थेरेपी एंड लाइक उसकी जान भी बच सकती है। सो बहुत बड़ी बात है। एंड एक क्या, हम लोग पूरा लाइक विश्वास है कि हम लोग बहुत लोगों की जान बचाएंगे इससे। Absolutely. चलो, So fully curable. तो आई गिव यू, मैं आपको मतलब आई अप्रिशिएट यू नॉट, वन थिंग इज ऑब्वियसली बिकॉज यू आर डूइंग सम इंटरवेंशन दैट एक्चुअली इज हेल्पिंग ह्यूमैनिटी here, there, and everywhere. But as a professional, I tell you very honestly that I salute your patience that you work for many years and then you get a paper. And that paper can run sometimes in 2,000 words, 3,000 words, 4,000 words. And then when we compare journalists, they produce it on daily basis, too many. And आपकी patience, I salute it. सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आई थिंक एम यही है कि कितने अच्छे से हम लोगों को ट्रीट कर पाएं और ये इस टेक्नोलॉजी को अफोर्डेबल बना पाए। दिन रात उसी में जाता है सर।
And once you have that kind of dopamine, I don't think कि जो what Divya was saying, you need anything else. और कुछ आपको इंस्पिरेशन नहीं चाहिए. आपकी इंस्पिरेशन यही है कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा पाए with the technologies which you have a hold on. Thank you so much, sir, for appreciating the work and for having us, all of our brilliant scientists, discussing with you today. Thank you. Pleasure, sir. I wish you best of luck, and I am thankful for whatever you interventions you are making, and it is going to make us better, a very healthy society. Thank you, and thank you. Absolutely. Thank you, sir. Thank you, sir.